must be thinking of this video, what it is about. This video, Alankar. So today's video is about figures of speech, and maximum figures of speech are explained by me in the video. Watch carefully and try to note down. These are always helpful for you. Before starting figures of speech and the definition, can anybody tell me why are these figures of speech used? When we say something normally, it has the effect on the person in front of you. But if you say it in a different way, with some wit or irony, then the effect on the person is a bit different and your impression becomes completely different. Similarly, when you write anything, to write that piece of writing, whenever you use these figures of speech, this will beautify your sentences and the writers will feel beautiful while reading and drawing meanings according to them. Now, a figure of speech होता क्या है? Is the speech that goes beyond original literal meaning. As you can see, it's very clearly mentioned. It goes beyond the literal meaning. Means whatever it literally means. If I say something and then I conclude its meaning directly, then it's not a figure of speech. But if I have to say something, मुझे कुछ कहना है and I say it differently, कुछ लोग उल्टी बातें बोलते हैं. कोई चीज़ ख़राब हो तो उसको कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा है. तो वो जैसे होता है तो डिफरेंट होता है लिटरल मीनिंग. इसे होता क्या है, ताकि नया इफ़ेक्ट क्रिएट हो, फ्रेश अप्रोच हो, ठीक है, और राइटर उसे रीड करने में अच्छा फील करे. ठीक है. एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन सेज ही इज स्टार्विंग, दैट मीन्स ही डज नॉट मीन दैट ही इज़ इन फैक्ट डाइंग ऑफ हंगर, बट दैट ही इज़ हंग्री. स्टार्विंग ऐसा नहीं है कि भूखा है, अनटू डेथ ही विल डाई. इसका बस नॉर्मल सा मीनिंग है कि हाँ ही इज़ हंग्री, द पर्सन इज़ हंग्री. ठीक है. और सबसे कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सिमिली और मेटाफर, है ना. आप लोग भी एज ब्राइट as cunning as, you remember, whenever you use these words as or like, we always use what? Which figure of speech is that? Comment right now before we start the video. Now let us see this picture. This picture has a lady. This lady is saying something. What? I'm telling that this lady is selling something. What? She sells seashells by the seashore. Can you see something common in this? Many a times this sir is repeated. She sells seashells by the seashore. This sound sir is repeated many a times. This figure of speech is known as alliteration. When the initial consonant sound, जो आपका consonant sound है इनिशियल वाला, वो बार बार रिपीट होता है. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, whatever he did, च is repeated. ठीक है. च जो रिपीट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन. अब देखिए ऑक्सीमोरॉन क्या होता है. अगर हम कहें दैट ही इज़ द डे इज़ वेरी कूल हॉट, ये हॉट कूल, तो कैन यू से अग्री विद दैट पॉइंट? हाउ कैन द डे बी कूल एज वेल एज हॉट? सो द वेदर इज़ वार्म एंड प्लेजेंट. इफ द वेदर इज़ वार्म, इट कैन नॉट बी प्लेजेंट. बट व्हेन वी यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स, इट्स नोन एज ऑक्सीमोरॉन. What does that mean? When we use two opposite words together. For example, when we say quiet rage, क्या कोई शांति से गुस्सा रह सकता है? Rage means anger, quiet means शांत. No. But when we say quiet rage together, that is called oxymoron. विवशता दिखाता है oxymoron. आप कितने विवश हैं. या फिर situation, pun. Reading while sunbathing makes you read well. Read. क्या एक्चुअली ये होता है? सन बात लेते लेते रीड करना, इट मेक्स यू रीड वेल. वेल, we'll see that with meaning of such kind of figures of speech. Let's go one by one. See, here it's told. For example, someone says, time sure runs quick. Can time run? No, but we are making time run as a person. This figure of speech is known as personification. क्या टाइम दौड़ सकता है? नहीं, पर हम कह रहे हैं टाइम दौड़ता है. इसका मतलब हम टाइम को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको personification कहते हैं. Oxymoron, it's the beginning of the end.
क्या अंत की शुरुआत होती है? ये दो अंत और शुरुआत दोनों वर्ड ऑपोजिट एक साथ यूज हुए हैं, देयर इज ऑक्सीमोरॉन. मेटोनिमिंग, आई एम ऑल ईयर्स. क्या आप कानों पे खड़े हो सकते नहीं, बट आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आई एम ऑल ईयर्स. I'm as fast as an arrow. Can you be fast as an arrow? But no, to signify that, to compare that, we use this simile, as fast as an arrow. Hyperbole, here talking me to death again. अब nobody can talk you to death. इतना कोई नहीं बात कर सकता that you'll die. But when we exaggerate something, कुछ बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोले, then it's known as hyperbole. I hope now you must be finding the video very interesting. Let us see. Simile. Simile is a phrase which compares something to something else using the word like or as. किसी चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर करना, कौन सा वर्ड यूज़ करके? दो वर्ड आपको मिले लाइक और एज, तो आप आँख बंद करके सिमिली बता सकते हैं. तो इसमें हमें किसको कंपेयर करना है? कोई भी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर करना यूजिंग दिस टू वर्ड्स लाइक और एज इज नोन एज सिमिली. I felt as high as a kite. The dog is as fit as a fiddle. Her hair was as golden as the sun. It cannot be golden as sun, just to make a comparison, just to show that there's something in common between the two things. For example, here her hair is golden as sun means the color of her hair is similar to the color of the sun. His feeling as high as kite means the height of the kite is compared, and the fitness of the dog. Something, some trait in common has been compared, not the thing as a whole. Metaphor. Metaphor is when there's a comparison made between two different things which share something in common. Her eyes were eyes. The world is your oyster. She was shining star of the talent show. अब देखिए, इसमें कोई trait common होना ज़रूरी है. Her eyes were eyes means it was very cold, expressionless. So there's something, some trait should be there in common to compare. वहाँ पर हम as direct ऐसे बोल देते हैं, as golden as. But here you have to draw the meaning. His eyes were eyes. The world is your oyster. See, remember these sentences and meaning I'm explaining. Examples should be yours. And also don't worry, after these many figures of speech, I have the notes in simple words also, see, which is written by me. I was in very hurry while writing, so don't you worry. See, very simple language it's written. I wandered lonely as a cloud. And indirect comparison between two different things that have something in common, then we use metaphor. Fine. So while scrolling, you might have seen so many figures of speech we have to study. So we have to go a little quickly. Irony. Irony means kataksh. Irony is a statement which conveys the exact opposite meaning of what is literally said. जो आप बोलते हैं, जब आप उसका exactly उल्टा उसका मतलब होता है, तो वो क्या होता है? irony बोलते हैं उसको. It is also a statement which contradicts the situation. For example, the pilot had a fear of flying. क्या ऐसा हो सकता है कि पायलट कोई फियर ऑफ फ्लाइंग हो तो वो चलाता कैसे है गाड़ी? द फायर स्टेशन बर्न टू द ग्राउंड. लो, आग बुझाने वाला ही स्टेशन, इट बर्न डाउन इटसेल्फ. व्हाट लवली वेदर, शी सेड व्हेन इट वाज रेनिंग. क्या किसी को रेनी वेदर अच्छा लगता है? बट शी सेड, तो एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं लोग यहाँ पर. LITOTES. LITOTES is an understatement which applies a negative to express the meaning of affirmative. तो एक नेगेटिव बात, कुछ लोग होते हैं जो सीधा सीधा नहीं बोलते, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप गंदे नहीं लग रहे हो. तो दिस इज़ LITOTES. कुछ लोगों का ये तरीका होता है. So to say that the dress is good, somebody can say that the dress is not too bad. I wasn't unhappy with the gift. Directly कह देते हैं I'm happy with, ठीक है, but not very satisfied, तो I wasn't unhappy with the gift. She isn't the friendliest woman in the world, but yes, she is friendly. तो एक नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके एक अफर्मेटिव मीनिंग कन्वे करना, जो कि एक्चुअली लगता नहीं है अफर्मेटिव है. इतनी गंदी तरीके से बोले जाने पर कहाँ अफर्मेटिव लगेगा, बट या इट्स ओके. एलिटरेशन. नाउ हमने देखा अभी एलिट्रेशन में जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. चंदू के चाचा ने च च च रिपीट हो रहा है.
इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हर वर्ड का। अब आप कहेंगे कि ज़रूरी है लगातार वर्ड हो, तो देखिए यहाँ बीच में ओन ऑन आ जा रहा है, प्रपोजिशन, आर्टिकल, तो ये सब नहीं, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, एटलीस्ट शुड बी रिपीटेड मोर देन 2 times 3 times in the sentence. She sells seashells on the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Anaphora. Anaphora is when a word is repeated multiple times within a phrase. और आपकी पोएम्स में कैसे, अगर स्टैंजा की हर लाइन जो है सेम वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है, जैसे पोएम में एक लाइन ज़रूरी नहीं है ना कि कंप्लीट सेंटेंस हो, सेंटेंस हो सकता हो 2-3 लाइन के बाद कंप्लीट हो, तो हर फ्रेज जो है स्टार्ट हो रहा है सेम से, जैसे आई हैड 1 apple, 1 banana, 1 pear, 1 1 1 इज़ रिपीटेड. माई लाइफ इज़ हैप्पी, माई लाइफ इज़ सिंपल, माई लाइफ इज़ कम्प्लीट, माई लाइफ माई लाइफ माई लाइफ, माई रिपीट हो रहा है. तो जब एक सेंटेंस, एक फ्रेज़ में बार बार जो फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, अगर सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है एक सेंटेंस के फ्रेजेस, तो उसको क्या कहते हैं, एनाफोरा. जैसे आपकी पोएम्स में होता है कई बारी लाइन व्हेन से स्टार्ट होती है, तो वो जब हो पोएम में तो सबसे पहले यही देख लीजिए, हर पोएम की हर लाइन अगर सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो वो एनाफोरा. Antithesis. Antithesis applies to a juxtaposition of ideas which are contrasting in a statement that is balanced. तो antithesis मतलब एक juxtaposition अप्लाई होता है आइडियाज़ का जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होता है स्टेटमेंट में, फिर भी बैलेंस्ड. तो सेंटेंस में ही 2 आइडियाज़ रखे गए हैं, एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़, और दोनों चीज़ को बैलेंस्ड बताया जाए. तो एंटीथीसिस, ऑपोजिट, एंटी मीन्स ऑपोजिट, थीसिस मतलब स्टडी. तो स्टडी करते हैं एक ही सेंटेंस में हम 2 आइडियाज़ का जो कि एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बट स्टेटमेंट को ऐसे पोजीशन किया जाता है दैट इट लुक्स लाइक बैलेंस. सी, लव इज़ एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज़ अ रियल थिंग. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होता है उसमें तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को ऐसे लाया जाता है कि दोनों शुड लुक बैलेंस्ड. अपोस्ट्रोफे, देखिए जो भी का एक्सप्लेनेशन आपको पूरा एक अच्छे से चाहिए वो आप नीचे मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, इसीलिए कमेंट सेक्शन ओपन रहता है मेरे चैनल का, कि जैसे आपको अपोस्ट्रोफी नहीं समझ में आया तो आप अपोस्ट्रोफी लिख दीजिए, एक पूरा वीडियो आई विल मेक फॉर अपोस्ट्रोफी एंड देन वी कैन स्टडी. तो अपोस्ट्रोफी तब यूज़ होता है जब हम एक ऐसे पर्सन को रेफ़र करें, ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफ़र करें जो एक्चुअली ज़िंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे बात करेंगे एज इट वाज अलाइव. Oh come on you stupid door, just unlock. When you talk to a door, oh come on you stupid door, just unlock, खुद खुल जाओ. Then we are talking to it, then we say apostrophe. अब इसमें और personification में डिफरेंस क्या होगा, personification में हम उसको traits दे देते हैं, यहाँ पर हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, सिर्फ डोर को एड्रेस कर रहे हैं. Oh come on you stupid door, just open. We are not telling कि door is facing so many hardships, डोर पे सब लोग बीट करते हैं, नॉक करते हैं, डोर को चोट लगती है. तो गिविंग ट्रेड्स एंड जस्ट एड्रेसिंग समवन, तो वो दोनों डिफरेंस आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू अवन फॉर हेल्पिंग मी मेक दिस मील. तो एड्रेसिंग, स्पीक टू, किसी से बोल देना ऐसे ही, और किसी को एक्चुअली ह्यूमन ट्रेड्स देना, दोनों डिफरेंट होता है. जैसे मैंने कहा आप टेबल की आत्मकथा लिखिए, तो आप टेबल को एज अ लिविंग बीइंग कंसिडर करके उसकी आत्मकथा लिखेंगे, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. वेयरएज अगर हम कहें टेबल हटो यहाँ से, स्टेबल जस्ट मूव, देन ये क्या है, जस्ट एड्रेसिंग, तब ये अपोस्ट्रोफी है. तो याद रखिएगा जब हम किसी से बोल रहे हैं, सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, अपोस्ट्रोफी है. वेयर एज जब हम उसको ट्रेड्स दे रहे हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन है. एजोनेंस. Assonance is a similarity in sound between vowels in the middle of neighboring words. तो क्या है, कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वर्ड के बीच में जब वॉवल कोई रिपीट हो रहा है लगातार हर वर्ड में, तो लगातार मतलब कैन बी 1 word गैप ऑल्सो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. तो नेबरिंग वर्ड्स में, ऑलमोस्ट नेबरिंग वर्ड्स में अगर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हाउ नाउ ब्राउन काउ में ओ बार बार रिपीट हो रहा है, फिर ऑन द साइड ऑफ द हाइट, तो ओ आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, साइड हाइट में आई, टॉप ऑफ द पॉप में ओ, तो ये एजोनेंस है. इसी का उल्टा कॉन्सोनेंस होता है जब कोई कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है. हाउ नाउ ब्राउन काउ में डब्ल्यू रिपीट हो रहा है. ओके. यूफेमिज्म. यूफेमिज्म is replacement of a phrase which might be deemed offensive by one which implies the same meaning but does not carry offense with it.
होता क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा डेफिनेशन है। इसमें होता क्या है कि हम एक रिप्लेस कर देते हैं फ्रेज़ को। जब हमको कोई बात कहनी है और वो मान लीजिए आपको शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उसको ऐसे शब्दों से रिप्लेस करना जो थोड़ा अच्छे लगें। जैसे ही डाइड बोलने से अच्छा अगर आप बोल दें ही पास्ड अवे, ठीक है। गोइंग फॉर अ पोम इज़ बेटर इफ़ यू से गोइंग फॉर बाथरूम, दैट विल बी बेटर, यू नो। किसी चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो ख़राब ना लगे देखने में। यूफेमिज्म, उसको पहचानेंगे कैसे? देखिए इसमें ही पास्ड अवे का एक्चुअल मीनिंग ही डाइड है, वो मर गया, तो यही होता है। बट इसको जब थोड़ा सा अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो यूफेमिज्म। जब भी देखिए ये सिर्फ डेफिनेशन आप देख लेंगे जब आप पोएम्स या कोई भी लिटरेरी वर्क रीड करें और उसमें से ये सब ड्राइव करें, ये सब देखें, ये सब कंक्लूड करें, तब आपको समझ में आएगा। हाइपरबोल बहुत इजी है, एग्जैजरेशन है ड्रामा ऐड करने के लिए। माई बैग वेट्स अ टन, किसी का बैग 1 टन का नहीं होता है, बट इफ़ यू से दैट इट्स हाइपरबोल। Metonymy is when a phrase is replaced with another and has a similar meaning and it's used to describe something in indirect manner. अभी वहाँ पर भी यही हुआ था यूफेमिज्म में, पर यहाँ पे जो ऑफेंसिव स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा सोबर वे में प्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मीनिंग ना बता के ये डिस्क्राइब करता है इनडायरेक्ट मीनिंग। माई हस्बैंड इज़ कंसिडर्ड अ सिल्वर फॉक्स, माई पेन इज़ मोर माइटी दैन द स्वॉर्ड। तो डायरेक्ट बोले मेरे पेन बहुत काम की है, या माई हस्बैंड इज वेरी कनिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दोज थिंग्स वी कॉम्प्लिकेट द सेंटेंस, तो दैट इज मेटोनिमी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट मीनिंग वो जो कंक्लूड कर रहा है, पर यूफेमिज्म में डायरेक्ट मीनिंग था, बस शब्द थोड़ा अच्छे यूज़ कर दिए गए थे। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया मतलब जब हम साउंड वर्ड्स जो है उसको डायरेक्ट बोलें। साउंड वर्ड्स जैसे अगर हम कहें कि द स्नेक वॉज हिजिंग, तो हिज का साउंड क्या है आपका, ओनोमेटोपिया बोला जाएगा जब वो पोएम में हिजिंग साउंड यूज़ हुआ है। माई वॉच टिक्स लाउडली, तो टिकिंग साउंड, सिजल यूज़, कॉर्ड यूज़, तो जब साउंड वर्ड्स यूज़ हो तो वो ओनोमेटोपिया होता है। ऑक्सीमोरॉन बहुत बार देखा हमने, 2 ऑपोजिट वर्ड जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उसको एक साथ यूज़ करना, जैसे बिटर स्वीट, प्रेटी अगली, माइटी स्मॉल, माइटी मतलब बड़ा काफ़ी, ओवर साइज एंड स्मॉल, बिटर मतलब कड़वा एंड स्वीट मतलब स्वीट, यू नो। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स वो जो खुद को ही कॉन्ट्रास्ट करे। अगर हम कहें कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड, ही इज़ अ वाइज फूल, तो ये सब क्या है, पैराडॉक्स स्टेटमेंट्स है। डीप डाउन आना इज़ रियली शैलो, डीप डाउन पहले जाओ फिर यू आर सेइंग इट्स शैलो। तो स्टेटमेंट में जब कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स एक साथ यूज़ हुए हों तो वो क्या है, पैराडॉक्स है। आपको काफ़ी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से सिमिलर लग रहे होंगे तो येस इट इज़, और सबके अलग अलग नाम यूज़ हुए हैं, तो डिपेंड करता है सेंटेंस में एक्चुअली वो कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो जब तक आप कोई भी पोएम या पीस ऑफ राइटिंग पढ़कर इसको कंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। Personification is when an object is not alive and that is given human qualities. My car is real beauty. Car cannot be beauty. और अगर कहा जा रहा है तो personify किया गया है कार को। Pun. Pun is a play on words. इसे words के साथ हम लोग खेलते हैं। It uses a word to give a different sentence, या फिर add कर दो, double meaning कह दो, तो वो pun होता है। जैसा कि वर्ड है हम लोग इसको ह्यूमरस सेंस में यूज़ करते हैं। एन एग फॉर ब्रेकफास्ट इज़ नॉट ईजी टू बीट। आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम डूइंग DIY. DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, सो आई नो द ड्रिल। ड्रिल मतलब रूल्स, तो काफ़ी सारा टाइम ये DIY यूज़ करते हैं, तो क्या करने के लिए, रूल्स जानने के लिए, मेथड जानने के लिए। The two guitarists got on well as they were always in the chord. तो अब देख रहे हैं शब्दों के साथ खेला जा रहा है, दूसरे शब्द दूसरा मीनिंग बट नॉट डायरेक्ट मीनिंग है, डबल मीनिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सीधे बोल देते हैं spend a lot of time practicing things, बट नहीं, I do lot of time doing DIY to know the drill and all. फिर synecdoche. Synecdoche क्या है? Synecdoche is a statement in which only part of something is expressed to relate to the whole. तो पूरी चीज़ नहीं एक्सप्लेन की जाएगी, उसका एक पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे आप रिलेट करिए कि पूरा सिनेरियो कैसा होगा। He has just got some new wheels. There were many hired hands in the factory. At school the children learn ABCs and 1 to 3s. तो ये नहीं कहा है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये सब पढ़ाया जाता है। ABCs and 1 to 3s मतलब इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है। सिनेक्डोचे में एक छोटा सा पार्ट कन्वे कर दिया जाता है, पूरा नहीं बताया जाता है। जैसे ही हैड गॉट सम न्यू व्हील्स, अब इस पर आप कंक्लूड करिए न्यू व्हील्स कार की है कि बाइसिकल की है कि क्या है कि कैसे है। तो सिनेक्डोचे मतलब जब
सिर्फ थोड़ा सा ही बताया जाए आपको और आपको क्या है टोटल कंक्लूड करना हो, तो हर बात जैसे आप लोग नहीं कंप्लीटली लिख देते हैं एक पैराग्राफ, नो, यूज सिनेडॉकी मोर. Understatement is a statement which is made to be less important than what is actually conveyed. तो कन्वे बड़ी बात कर रहे हैं लेकिन उसको इम्पोर्टेंस जो है उसका थोड़ा सा गिरा दे रहे हैं. पर वहाँ पर आपका हाइपरबोल में एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे थे, यहाँ पे गिरा दे रहे हैं. आप $2 million कम थोड़ी होता है, लेकिन अगर आप कहें ओनली हैव टू मी, आई हैव ओनली $2 million, ओनली आई ओनली हैव. द ग्रेट कैनियन इज़ अ होल इन द ग्राउंड. अरे ग्रेट कैनियन बहुत बड़ा वॉल्केनो इज़ अ होल इन द ग्राउंड बोल देंगे तो आप उसकी तो पूरी इज्जत ख़त्म कर दे रहे हैं. तो इसको अंडरस्टेटमेंट कहते हैं. जो जनरल फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ये 6 हैं. शैम्पो, सिमिली, हाइपरबोल, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया. तो ये आप लिख लीजिए प्लस ये आपके नोट्स. इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होता है कहीं. एलेगरी एक है, देखिए ये लोग तो एलेगरी वाला तो हमने देखा ही नहीं. एलेगरी देख लीजिए. एलेगरी क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एलेगोरिया विच मीनिंग स्पीकिंग टू. ठीक है, तो ये है कि आप कुछ और बोलकर कुछ और जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पर एक्चुअली एलेगरी अक्सर यूज़ होता है, आपने देखा होगा एलेगरी, फीमेल एलेगरी यूज़ हुआ था हिस्ट्री में भी. तो ये ह्यूमन डिज़ास्टर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोसाइटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है. आर्काइज़म एक होता है. आर्काइज़म मतलब पुराने जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको आर्काइज़म बोलते हैं. ठीक है. डिक्शन इज़ एन ऑथर्स वर्ड चॉइस टू क्रिएट स्पेसिफिक इफेक्ट. वो कुछ खुद से कोई वर्ड यूज़ कर ले, ठीक है, तो उसका वर्ड चॉइस होता है ऑथर का, ताकि वो स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट करे. फिर वो उसका ही खुद का मीनिंग भी होता है. सिम्बॉलिज्म तो आपको पता ही है, पर्ल फॉर वेल्थ, हेल्थ. तो ये क्या है सिम्बॉलिज्म? किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करना. जैसे हम पैसे को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्ल बोल दें, मोतियों की तरह कीमती. ये है सिंपल से फिगर्स ऑफ स्पीच. एंड प्लीज़ विच एवर यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन या इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो वो आप नीचे लिख दीजिए, तो उसका एक अलग से पूरा 5-6 मिनट का एक्सप्लेनेशन आई विल पुट. दैट्स ऑल. थैंक यू.